Arithmetic progression, that is in short you say it AP. It is like that 3, 5, 7, 9. This is the series written. If you take the difference between two consecutive terms, always mind it that difference is taken latter minus previous. 5 minus 3 to 7 minus 5 to 9 minus 7 to, therefore the difference between two consecutive terms is same. This type of series is called AP, arithmetic progression. Whatever written is, don't worry. 2 plus root 3, 2 plus, if you take the difference between two consecutives, that is will be root 3. So this is an AP. This is called AP. Now, as I said earlier, that the language is very important. Here some notations are there, like that. A, that is, it usually denotes first term of the AP, like that. 3 here the first term, here 2 the first term, it is denoted by A. This is AN or TN. In some books it is denoted by TN. In NCERT it is denoted AN. AN or TN denotes the nth term. Okay, nth term, always mind it, this is the nth term. If, for example, as I have taken A5 means fifth term, A20 means 20th term. A5 means fifth term, not 5. Whatever the fifth term, that will be A5. A20 means 20th term. Okay? Now, see in this 3, 5, 7, 9. 3 is the first term, 5 is the second, third term. A3 will be 7. A4 will be 9. Similarly here, A3 is equal to 2 plus 2 root 3, because the third term of this series is 2 plus 2 root 3. Fourth term, that is 2 plus 3 root 3. Okay? Therefore, don't confuse. A5 means fifth term. A20 means 20th term. A50 means 50th term. Okay? Now, N, the number of terms of the AP. It is simple one. D is the common difference. Here, 5 minus 3, 2, 7 minus 5, 2. This 2 is D. That is common difference. As here written, D is equal to A2 minus 7. You can find it. Second term minus first term, or third term minus second term, or fourth term minus third term. That will be same one. That gives you D. And Sn is the sum of first n terms. S20 means सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. अगर जो पहला 20 टर्म्स होगा उसको अगर ऐड करें तो वो कितना आएगा, वही है S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. यही सारे नोटेशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. बाकी जो वर्क है वो बहुत सिंपल है. फार्मूला याद रखना है. फार्मूला याद रखने के बाद आपको सिंपल अलजेब्राइक वर्क करना है. ठीक है. Now, here is important formula. First, to find term. See, in this term 3, 5, 7, 9, this is the AP. This is the fourth term. Fifth term will be 9 plus 2, 11, 13, like that. If the question is find the 50th term, 50वां term निकालिए, तो आप तो लिखते नहीं रहोगे, इसको तो लिखते नहीं ना रहोगे. तो ऐसी स्थिति में फार्मूला का ज़रूरत पड़ जाता है. तो सबसे पहला चीज़ होता है कि फर्स्ट जो आपको टू फाइंड nth टर्म. ओके, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. सिंपल फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप नोटेशन जान रहे हो. an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है. जैसे मान लो कि पहले वाले जो हमारा सीरीज गिवन था, अगर उसमें हमको 50th टर्म निकालना हो
तो हम यहाँ लिखेंगे A50 इजकल टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ 3 था, तो ये पुट हो जाएगा 3n, कौन सा टर्म निकालना है 50th टर्म, तो यहाँ 50 पुट हो जाएगा, 50 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या था, तो ये पहले वाले में हमारा 5 माइनस 3 यानी कि 2 था, तो उसको पुट कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, तो आपका 5th टर्म निकल गया। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है फ्रॉम लास्ट, जैसे मान लो कोई भी सीरीज दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो इसमें दो बात होता है, एक या तो आपको लास्ट टर्म गिवन हो या लास्ट टर्म नहीं गिवन हो के नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, यानी n गिवन हो, दो तरह का बात बनता है। तो अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तब फॉर्मूला बनेगा an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है, लास्ट टर्म है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो उसको पुट कर दीजिए। n जो बोल रहा है कि जैसे मान लो कि 20th टर्म बोल रहा है तो यहाँ 20 पुट हो जाएगा। d जो कॉमन डिफरेंस है ये लास्ट टर्म निकल जाएगा कि फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। अगर यही बात आपको बोले कि अगर मान लीजिए कि लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा और इन दैट प्लेस उसके जगह पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम एंड इफ द लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन, हियर वी कैन से इट m, मान लेते हैं कि m है, तो nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म जो है वो होगा m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से जो टर्म बनेगा ये वही टर्म nth टर्म फ्रॉम एंड होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ में आ जाएगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू 30, मान लेते हैं कि टोटल टर्म्स जो है AP में 30 है। और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि द 12th टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड आउट कीजिए 12th टर्म फ्रॉम एंड। तो 12th टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग पहले वाले फार्मूला में पुट नहीं कर सकते थे, एल वाले फार्मूला में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 30 माइनस 12, यहाँ देखोगे m माइनस n प्लस 1, तो 30 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस हमको 12th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो वो पुट कर दिए प्लस 1, तो 30 माइनस 12 18, 18 प्लस 1 19th, यानी 19th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी जो 19th टर्म स्टार्टिंग से होगा वही टर्म 12th टर्म होगा फ्रॉम एंड से, ठीक है। बाकी अब A19 निकालने के लिए ये वाले फार्मूला में पुट कर देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकल जाएगा। तो ये 12th टर्म निकल जाएगा फ्रॉम एंड, यानी कि 19th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला जो है वो है रिगार्डिंग टर्म्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा सम वाले फार्मूला में।